Hello dear learners, myself Dr. Shilpa Vinodia, Assistant Professor, Department of Botany, Pandit Sundarlal Sharma, Open University, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, welcomes you all. आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज़ फॉसिलाइजेशन, इसके टाइप्स, प्रोसीजर्स और टेक्निक्स जिसकी वजह से हम फॉसिल्स को स्टडी कर सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फॉसिलाइजेशन. So let us start with the definition. What is fossils and fossilization? Fossil is an impression cast original material or track of any living organisms or plant that is preserved in rock after the original organic matter is transformed or removed. पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं. जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है. What is paleontology? So, scientific study of life of the geologic past that involves the analysis of plants and animals, includes fossils that is of microscopic size preserved in rocks. It is concerned with all aspects of the biology of ancient life forms, their shapes and structure, evolutionary pattern, taxonomic relationships with each other and with modern living species, geographic distribution and interrelationships with the environment. So, what is paleontology? It is the scientific study of the geological past, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं जैसे उनके स्ट्रक्चर, इवोल्यूशनरी पैटर्न, टेक्सोनॉमिक रिलेशनशिप और अदर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस जो कि इन्वायरमेंट से इंटर रिलेट करते हैं. व्हाट इज़ पैलियोबॉटनी? पैलेंटोलॉजी के दो ब्रांचेस होते हैं, एक तो होता है पैलियोबॉटनी, दूसरा होता है पैलियोजूलॉजी. तो पैलियोबॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं जो फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं और पैलियोजूलॉजी में जैसा कि नाम से ही डिनोट है कि इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं जो कि फॉसिलाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है. सो लेट अस डेफिनेशन ऑफ पैलियोबॉटनी: scientific study of ancient plants using plant fossils found in sedimentary rocks. These fossils can be impressions or compressions of the plants left on the rock's surface or petrified object such as wood which preserves the original plant material in rock-like forms. In the same way, paleozoological is the branch of paleontology or paleobiology or zoology dealing with the recovery and identification of multicellular or multicellular animals remains from geological context and the uses of these fossils in the reconstruction of prehistoric environment and ancient environment. Now comes to the theory of molecular replacement. There are two theories, one is molecular replacement theories and the other one is infiltration theory. So, what is molecular replacement theory? In this process, the fossilization, the plant body is being replaced by minerals, water and other molecules that occurred in the form of solution. The replacement has been gradual and not swift, as sometimes occurs in the nature by hydrolysis or weathering of organic substances. Fossilization is considered to complete as soon as all the tissues except lignin, cellulose, etc. are replaced. Lignin and cellulose may also be gradually diminished by their chemical decompositions or by molecular replacement of them by mineral compounds like carbonates, silicates और iron pyrites. तो इस molecular replacement theory से हम क्या समझ रहे हैं कि किसी भी टिश्यू का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके जो भी, क्योंकि सारे टिश्यूज़ जितने भी हैं वो सब किससे मिलके बने हैं, बायोमोलिक्यूल्स से, और बायोमोलिक्यूल्स का रिप्लेसमेंट किससे होगा, जो फिज़िकली अवेलेबल जो मैटर है लाइक सैंड है, सिलिका है, तो वो रिप्लेस करेगा उन बायोमोलिक्यूल्स को और तब तक रिप्लेस करेगा जब तक कि जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं वो रिप्लेस ना हो जाए या डिमिनिश ना हो जाए. इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट थ्योरी. दूसरी थ्योरी जो है वो है थ्योरी ऑफ इनफिल्ट्रेशन. इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
mineral matters from the surrounding medium precipitated and infiltrated in the cell wall. The plant remains after their burial underwent partial disintegration, releasing carbon in free state. This carbon then reduced the sulfides present in the water and resulted into the formation of calcium carbonate, magnesium carbonate and ferrous carbonate, etc. Silica and similar other compounds too, by precipitation and infiltration, were later deposited within the cell walls. Thus, this theory provides the existence of organic and inorganic compounds inside the cells of the fossils, types of fossils. So, infiltration theory में क्या हो रहा है कि जो compounds हैं उनमें precipitation हो रहा है और infiltration हो रहा है, जो कि बाद में कहाँ डिपॉजिट होता है, सेल वॉल्स में. नाउ कम्स द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स किस तरह से बनते हैं, तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बेसिक प्रोसेस है फॉसिलाइजेशन का, इसमें जो फिजिकल पार्ट है किसी भी एनिमल या प्लांट का, वो हाई प्रेशर में बहुत समय तक, जब ये अर्थ क्रस्ट के अंदर में ये बरीड हो जाता है, तब ये क्या बनता है, फॉसिल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है. So, this matrix in the earth's crust is usually sedimentary. The sedimentary environment of this kind can be of several types, such as lake, stream, inland seas or estuaries, etc. In several cases, it also been observed that diatoms, frustules also get incorporated in deposits of deep seas basins. In rare cases, the sedimentary environment is in the form of volcanic deposits or other sebaceous condition. Portion of the organisms like plant or animal preserved in sediments become stony or lithified during course of time. So, as we have gone through the two theories, so from those two theories only the organic matter of the plant or animals get replaced by the sediments and it becomes stony and lithified during the course of time. Now comes to the sedimentary rocks, how they are formed. Accumulation of rock particles resulting in the formation of sedimentary rocks. तो ये accumulation कहाँ से होता है, जब लगातार, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नदी बह रही है, ठीक है, नदी जब बह रही है तो वहाँ जो नदी के साथ साथ में जितने भी पार्टिकल्स पानी के साथ ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो वो उसके किनारों पर इकट्ठा होते जाते हैं, और जब वो बहुत समय तक इकट्ठे होते हैं तो साइड में जितने भी जो वो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे एक सेडिमेंट के फॉर्म में जमा हो जाते हैं और एट लास्ट फिर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और कई बार फिर वो और हार्ड होने के बाद रॉक का भी रूप ले लेते हैं. तो वो क्या बना लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक. Chemically weathering and flooding also helps in the formation of these particles. Chemical weathering के थ्रू भी या flooding के थ्रू भी ये possible है. These rocks particles or sediments accumulate and water is squeezed out of them. During course of time, this makes them much more compact or rocky structure. जैसे समय बीतता जाता है तो ये harder and harder होने लग जाते हैं और these structures are called the sedimentary rocks. अब हम आते हैं फॉसिल्स के टाइप्स पर. तो पहला जो टाइप है वो क्या है, पेट्रीफैक्शन. तो व्हाट इज़ पेट्रीफैक्शन, इट लिटरली मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्टोन. तो इट इज़ रेयरेस्ट बट मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टाइप ऑफ फॉसिल्स. इन्फॉर्मेटिव क्यों है, क्योंकि ये जो फॉसिल्स अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा ईज़िली हमें फॉसिल की स्टडी करने के लिए हमें हेल्प करते हैं. जैसे कि आपको जो भी स्टोन में इम्प्रेशन मिलेंगे वो आपको बहुत इजीली विजिबल भी होंगे, बहुत माइन्यूट जो कैरेक्टर्स होंगे वो भी हम इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं. इन दिस केस द टिश्यूज़ आर पर्टिकुलरली और पार्शली रिप्लेस्ड बाय मिनरल मैटर्स विद द प्रिजर्वेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स. इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी प्रिजर्व हो जाते हैं जिसकी वजह से हम उन सेलुलर स्ट्रक्चर्स की बारीकियों को ईजिली स्टडी कर पाते हैं. इसे हम पर मिनरलाइजेशन भी कहते हैं. It results due to infiltration followed by precipitation of soluble minerals like silicates, carbonates, sulfates, phosphates of calcium and magnesium or some iron compounds into the intercellular spaces and sometimes within the cell. तो cells के जो बीच में जो space होता है आप सभी जानते होंगे
एज यू आर ऑफ बॉटनी स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं कि सेल के जो बीच में स्पेस होता है हम उसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। जैसे जैसे प्लांट जब मैच्योर होता है तो उनके जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज़ होते हैं प्लांट के, वो सबमिट होने लग जाते हैं या फिर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बीच में किसका डिपोजिशन होता है? सिलिकेट्स का, कार्बोनेट्स का, सल्फेट्स का, फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और समटाइम्स आयरन के कंपाउंड्स भी, जो कि बाद में जाके बहुत स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, एंड दिस वे द होल टिश्यू एंड ऑर्गन गेट पेट्रिफाइड विथ ऑल इट्स सेलुलर डिटेल्स. Next is incrustation or cast. In this type of fossils, the external part of plants like cuticle, bark, pork and epidermis are preserved, but internal parts like cortex and pith etc. disintegrate. Since the pith is the very delicate structure which is available or which is observed in angiosperm and gymnosperm, so वो स्ट्रक्चर्स जिम्नोस्पर्म में हम जब देखते हैं तो कई बार हमें बहुत स्मॉल साइज़ के पिथ मिलते हैं, जो कि जब ये फॉसिल के फॉर्म में हमें जो अवेलेबल होते हैं वहाँ पर ये डिग्रेड हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होते हैं. बट जो हार्डर स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक क्यूटिकल्स हैं, पोर्क है, एपिडर्मिस है, तो ये थोड़ा हमें बाद में जब हम इसको फॉसिल के रूप में स्टडी करते हैं तो ये लाइनिंग हमें इजीली दिख जाती है, बट इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. देयरफॉर द पोर्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिकम्स हॉलो which is filled with solid mud by which their shape is formed and outer parts are peeled off and separated. तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? हमें सिर्फ कास्ट मिल रहा है. जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है वो डिग्रेड हो जाते हैं, सिर्फ जो आउटलाइन स्ट्रक्चर्स हैं वही हमें स्टडी करने को मिलते हैं. जो थर्ड टाइप है फॉसिल्स का वो है कंप्रेशन. कंप्रेशन से हम समझते हैं कि ये जो भी टिश्यूज़ हैं प्लांट के और एनिमल्स के, ये प्रिजर्व हो जाते हैं किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जिससे क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो कंप्रेस हो जाता है, उसी को हम कंप्रेशन फॉसिल्स कहते हैं. इसका एग्जांपल है लेपिडोस्ट्रोबस. लाइक इसमें स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, ये बहुत ही इजीली और अच्छे से कंप्रेस होते हैं और बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं. इन दिस द हायर प्रेशर एक्ट्स ऑन फॉसिल, hence they become flattened. The best example in the compression of clay module, which can be easily studied by opening it. Next is compaction. The fossil which are formed by their interpressure between the plant and plant organs are called compaction. As you can see in the diagram, no intermediate matter is present between the plant organ. तो जब प्लांट और प्लांट के बीच में ही जब इंटरप्रेशर डेवलप होता है तो ये कॉम्पैक्शन की प्रोसेस होती है. जैसे इसमें लीफ है, हार्ड फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, ये सभी बहुत इजीली प्रिजर्व हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इम्प्रेशन. ये जो फॉसिल है ये एक प्रिंट के फॉर्म में रॉक के सरफेस पर अवेलेबल होता है. हम इसे तुरंत भी, जैसे हम किसी प्लांट को किसी रॉक की सरफेस पर हम प्रेस करते हैं या थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो भी हमें उसके इम्प्रेशंस इजीली दिख जाते हैं. स्पेशली ये सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए होता है जो प्रोसेस है. सो इन दिस टाइप ऑफ इम्प्रेशन द सेडिमेंट हेल्प इन द बरियल द प्लांट एंड सो दे बिकम हार्ड. नो सेलुलर स्ट्रक्चर इज distinct in impression fossil. Generally impressions of roots and leaves are seen as dry specimen on the piece of rocks. जैसे कि आपने आप बॉटनी के अगर स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा कि हम हर्बेरियम बनाते हैं. तो हर्बेरियम जब हम बनाते हैं तो प्लांट को जब हम प्रेस करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इजीली दिख जाता है. वो ड्राइड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और बाद में हम उसका डीएनए भी एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सिमिलरली जो इम्प्रेशन में जो प्लांट के जो इम्प्रेशन बनता है उससे हमें काफ़ी सारी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है. नेक्स्ट इज़ एम्बर. एम्बर क्या है? दिस इज़ द फॉसिलाइज्ड प्लांट रेजिन सिक्रीटेड बाय कॉनिफेरस ट्रीज that grew in very early times is called amber. This very early time in the geological past ranged from Carboniferous era about 345 million years ago to Paleocene era. Fungal spores, pollen grains etc. were trapped in this resin before fossilization, and as soon as the resin gets harder and harder, the spores or the
fungal spores or the pollen grains, they adhere or they are trapped in the resin, and as it is they remain in the resin, and whenever the resin is studied or that is been discovered, तो तब हम उस रेजिन को कट करके उस जो स्पोर को आइसोलेट कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एम्बर रेजिन fossilized into amber, inside there were left spores, pollen grains, etc. Now comes the diatomite. Diatoms are unicellular algae belonging to class Basilaриophyceae. We all know their walls have silicon deposits. The sedimentary rocks formed by the remains of diatom is called diatomite. Diatoms में जनरली किसका डिपोजिशन होता है, सिलिकॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या डिपोजिशन होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक जो बनते हैं वो इन्हीं डायटम्स के डिपोजिशन से बनते हैं। जब हम देखते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र के नीचे जितने भी समुद्री जीव हैं, जब उनकी डेथ होती है तो वो भी कहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं, इन द बॉटम ऑफ द सी, जिसकी वजह से इसके जो डेब्रीज हैं, चाहे उनके कैल्शियम डिपॉजिट्स हो, चाहे वो फॉस्फेट डिपॉजिट हो, तो ये सारे जो इसके डिपॉजिट्स होते हैं वो नीचे जाके जमा हो जाते हैं और वहाँ पर ये बाद में एक चट्टान का भी रूप ले लेते हैं जब लॉन्ग टाइम तक ये डिपॉजिट होते हैं तब तक। तो ये जो डायटम्स हैं ये क्या करते हैं, सिलिकॉन डिपॉजिट का काम करते हैं और सेडिमेंट्री रॉक से हम इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, डायटोमाइट कहते हैं। नाउ कम्स द स्यूडो फॉसिल्स और डेंड्राइट्स। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स और फॉसिल्स का मतलब आप जान ही चुके हैं। तो स्यूडो फॉसिल्स आर डेंड्राइट्स, दे आर कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस टाइप्स। They are not the fossils but they are assumed to be a fossil। मतलब क्या होता है, कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं सैंड में या रॉक में जिनको देखकर लगता है कि वो किसी के फॉसिल्स हैं, लेकिन वो एक्चुअली किसी के फॉसिल्स नहीं होते हैं, बट वो जस्ट ऐसे ही स्ट्रक्चर हैं जो कि फिजिकल फैक्टर्स हैं वो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, तो उसके जो मेकअप में चेंज आ जाता है, तो उसके हमको कुछ एक ड्राइंग या कुछ ऐसा डिज़ाइन दिखने लगता है तो जो कि रिजेंबल करता है किसी प्लांट या एनिमल टिश्यू से, तो हमें लगता है कि वो एक फॉसिल है, बट जब उसकी स्टडी की जाती है तो वो समझ में आता है कि नहीं, वो सूडो फॉसिल है। नेक्स्ट कम्स द ममिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल इन आइस फ्रोजन इन्वायरमेंट इन द पोलर रीजन इज टर्म्ड एज ममिफिकेशन। आप सभी जानते होंगे कि जब भी आइस में प्रिजर्व होती है कोई भी बॉडी, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, तो वो उसी फॉर्म में रहती है, वो डिग्रेड नहीं होती है क्योंकि वो फ्रोज़न फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो द मॉइस्चर ऑफ द टिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट्स कन्वर्टेड टू वेरी स्मॉल और माइक्रो क्रिस्टल्स ऑफ आइस। तो बॉडी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे बॉडी डिग्रेड नहीं हो पाती। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ममिफिकेशन, जिसको हम एक डीप फ्रीजिंग का भी प्रोसेस कह सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द बायोकेमिकल फॉसिल्स। दीज आर द फॉसिल्स विच कंसिस्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस लाइक क्लोरोफिल, अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक एसिड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड स्टीरॉइड्स। दे हैव बीन रिपोर्टेड टू बी प्रेजेंट आइदर इन द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द रॉक। निकोलस रिपोर्टेड biochemical fossils of the substances related to sporopollen in lignin, cutin, cellulose etc. तो ये बायोकेमिकल फॉसिल्स क्या हैं, ऐसे फॉसिल्स जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, एरोमेटिक एसिड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, सेलुलोज है, ये सभी रिपोर्टेड होते हैं। जब बाद में हम इसकी स्टडी करते हैं ये बायोकेमिकल फॉसिल्स की, तब हमें पता चलता है कि इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, तब हमें ये समझ में आता है कि ये बायोकेमिकल फॉसिल्स हैं। अब हम ये जानते हैं कि फॉसिल्स को स्टडी कैसे किया जाए। तो पहला है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन फॉसिल को कैसे स्टडी करते हैं, तो पहला जो स्टेप है इसका वो है दीज आर स्टडीड जनरली बाय प्रिपेयरिंग आर्टिफिशियल कास्ट विच आर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव्स। एक हम कास्ट तैयार करते हैं और इस इम्प्रेशन को उस कास्ट के ऊपर प्रेस करते हैं, तो उस कास्ट के ऊपर उस इम्प्रेशन की एक और इम्प्रेशन बन जाती है जिसको हम स्टडी करते हैं फर्दर। सेकेंड इज मोल्ड। दीज आर स्टडीड एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ इम्प्रेशन। मोल्ड और कास्ट एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे ही जो मोल्ड है, जैसे एक सांचा होता है
जब सांचे में हम किसी चीज़ को ढालते हैं, मान लो क्ले है, क्ले को हमने उस सांचे में फिट किया और फिर उसके बाद उसको ड्राई होने के बाद निकाला, तो वो जो हमने उसमें क्ले रखा था वो क्ले उसी का रूप ले लेता है, जिसके उसी तरह से मोल्ड का भी कार्य है। नेक्स्ट इज कंप्रेशन। These can be studied either by transfer technique or by maceration in scheduled solution or by first softening and then cutting thin sections by microtomy. जितने भी कंप्रेशन फॉसिल्स हैं इनको क्या करते हैं, एक ट्रांसफ़र टेक्निक के द्वारा मैसीरेशन किया जाता है, जिसके लिए हम एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जिससे ये पहले थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ताकि वो कटिंग करने के लिए आसानी हो। देन हम उसको माइक्रोटोमी में रख कर कटिंग करते हैं। नेक्स्ट कम्स द पेट्रीफैक्शन। पेट्रीफैक्शन में जो प्रिजर्व फॉसिल्स होते हैं उसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं। पेट्रीफाइड मटेरियल्स आर स्टडीड बाय पील सेक्शन मेथड। जैसे हम पीलिंग करते हैं पोटैटो की, उसी तरह से हम पेट्रीफैक्शन में भी जो फॉसिल अवेलेबल है उसको हम छील कर जो एक्स्ट्रा जो सब्सटेंस है उसके आसपास जो लगे हैं उसको पहले निकाल लेते हैं। देन हमें एक प्रॉपर उसका पेट्रीफाइड जो फॉसिल है वो मिल जाता है। दीज आर द इम्प्रेशंस, मोल्ड कास्ट, पेट्रीफैक्शन, कंप्रेशन, इनके एग्जाम्पल्स हैं फॉसिल्स के। इन द डायग्राम यू कैन सी द इचिंग टेक्निक और पील मेथड जो कि डिस्कवर किया गया था, और इसको करने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की आवश्यकता होती है, जिससे जो फॉसिल है उसको हम सॉफ्टन करते हैं। एंड देन दिस सरफेस इज फ्लडेड विद एसीटोन एंड फिल्म ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट इज रोल्ड डाउन। आफ्टर सम टाइम व्हेन द फिल्म इज ड्राइड इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। The clear impression of specimen develops on the film by definite method. It is made permanent and studied under microscope. Some methods are also there for studying fossils like X-ray analysis, phase contrast microscopy, scanning electron microscopy, interference microscopy, etc. Study of fossils is of great importance because there are so many advantages of studying fossils. First of all is they furnish evidence of the prehistoric life. They also provide missing links in the evolutionary chain. They help in the construction of phylogenetic classification. जब भी phylogenetic classification हम ड्रॉ करते हैं तो fossils का जो हमें रिकॉर्ड मिला है उसके ही थ्रू ही हम दर्शाते हैं कि किस तरह से phylogenetically we are different and plants are different, how plants are also classified. And evolutionary जो chain है, जो missing link है फॉसिल्स के और जो प्रेजेंटली अवेलेबल है हमारे पास प्लांट्स एनिमल्स, उनके जो मिसिंग लिंक है उसको भी हम फॉसिल्स के थ्रू ही स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो थ्रोन लाइट ऑन हाउ सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सटेंक्ट प्लांट एंड एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड। जितने प्लांट्स हम आसपास देखते हैं उनका इवोल्यूशन भी हम फॉसिल से ही तय करते हैं। द नेक्स्ट इज फुल फ्लैश्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट डिवोटेड फुली टू द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट नाउ एग्जिस्ट इन आवर कंट्री लाइक बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि फॉसिलाइजेशन क्या होता है, किस तरह से होता है और इसकी कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं जो कि फॉसिलाइजेशन में दी गई थी। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से हम फॉसिल्स को स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।